Good evening and welcome viewers. This is lecture number 12 on solid state physics. In this lecture, we will discuss about the condition for diffraction in case of reciprocal lattices, or you can say that we will discuss about Bragg's law in reciprocal lattices. Next, we will cover in this lecture what is Evolt's construction and what is Evolt's sphere, or you can say sphere of reflection. So these two topics we are going to cover in this lecture. So before proceeding further, I would like to recapitulate the previous lecture, what we have done in our previous lecture. So you know that in case of previous lecture, we were discussing about the reciprocal lattices. We have discussed the need, the representation, the construction, and we have seen the reciprocal lattices corresponding to some particular specific types of Dirac lattices. We have seen various types of queries, myths related to reciprocal lattices. So what we have concluded from the previous lecture was that reciprocal lattice is a type of lattice, or you can say that reciprocal lattice is a type of representation of crystals, of understanding crystals in another way. A type of structure that was simple cubic in case of direct lattice is again a simple cubic in case of reciprocal lattices, and a type of structure that has BCC structure in case of direct lattice is converted into FCC in case of reciprocal lattices. And we have seen the BCC is converted into FCC, FCC in BCC, and SCP is not going to alter, it is going to remain same. And you should keep in mind that the reciprocal lattices is just a type of description, just a way of understanding the crystals. This doesn't mean the structure of a material in case of direct lattice is going to change in case of reciprocal lattice. This doesn't mean that. ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लैटिस में जो चीज़ सिंपल क्यूबिक है, कोई भी एक मटेरियल है, उस मटेरियल की स्ट्रक्चर चेंज होने वाली है, कि कोई हमारे किसी प्रकार की स्ट्रक्चर थी उसको रेसिप्रोकल लैटिस में उसकी स्ट्रक्चर चेंज होने वाली है. दिस इज नॉट द केस. What reciprocal lattice is? Just a type of description, just a type of way of understanding crystal lattice. Direct lattice is a way of understanding crystal lattice. In a certain type of notations, we have some crystal primitive translation vectors A, B, C, you have seen, and we have a type of translation vector in case of direct lattice that we have seen. T, we represent it by T. Similarly, reciprocal lattice is a type of notation, type of description, and we have seen very clearly that reciprocal lattice is as a result of XRD, outcome of XRD. XRD के केस में जो हमें आउटकम मिली थी, उस आउटकम को रेसिप्रोकल लैटिसेस की टर्म्स में समझना was quite easier in comparison to direct lattice. That's why we introduces the concept reciprocal lattice, and we will proceed further in case of reciprocal lattices. तो you may question or you will ask कि reciprocal lattice तो ठीक है, we have understood, बट ये टॉपिक्स क्यों आ रहे हैं बीच में? इवॉल्व कंस्ट्रक्शन क्यों आ रहा है, इवॉल्व स्फीयर क्यों आ रहा है? कि ये ऑब्वियस क्वेश्चंस हैं. इन क्वेश्चंस को सेटिस्फाई किए बिना, किसी भी टॉपिक की सिग्निफिकेंस जाने बिना उसको पढ़ना इज क्वाइट इररेलेवेंट. सो सिग्निफिकेंस, यू मे नोटिस कि सिग्निफिकेंस इस टाइम पे थोड़ा सा समझना आपको थोड़ा सा इनसिग्निफिकेंट लग सकता है, यू मे नोटिस, बट जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, यू विल सी द कनेक्शन बिटवीन ऑल दीज टॉपिक्स, यू विल सी द ब्यूटी, हाउ दीज टॉपिक्स, हाउ दीज लेक्चर्स आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे लेक्चर से कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है. क्या खूबसूरती है इस सब्जेक्ट की, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की. जैसे कि किसी भी सीरियल, ड्रामा सीरियल में यू हैव सीन कि
एकदम से कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर देते हैं और आप थोड़ा क्वेश्चन स्टेट ऑफ माइंड में रह जाते हैं कि ये कैरेक्टर को इस टाइम पे लाना क्या जरूरी थी, क्या मतलब पहले 2-4 एपिसोड में आपको ऐसा ही लगेगा कि दिस कैरेक्टर इज क्वाइट डिस्कनेक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कैरेक्टर्स ऑफ दिस ड्रामा सीरियल। जस्ट लाइक दैट हियर यू मे फील, you may think कि these topics are quite disconnected from the previous ones, but as you proceed further you will see there is a direct link between these topics and the previously discussed topics. So link is not going to disconnect, this link will proceed further. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि द कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन इन केस ऑफ रेसिप्रोकल लैटिसेस क्या है। तो थोड़ा सा इसकी सिग्निफिकेंस पे थोड़ा सा हम फोकस करते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस यहाँ पे इस टॉपिक को इस वक्त पे लेके आने की क्या सिग्निफिकेंस है। तो एक सेकेंड जस्ट, यस एवरीथिंग इज ओके। तो सिग्निफिकेंस के केस में कि जैसे कि हमने डायरेक्ट लैटिस के केसेस में बात की थी कि जब भी हमें किसी वेव का इंटरेक्शन देखना है किसी भी क्रिस्टल लैटिस के साथ, तो डायरेक्ट लैटिस में हमने कैसे अंडरस्टैंड किया उन चीज़ों को, कैसे अंडरस्टैंड किया। वी हैव ब्रैग्स लॉ, फेमस ब्रैग्स लॉ इन केस ऑफ डायरेक्ट लैटिस, वी हैव ब्रैग्स लॉ इन केस ऑफ डायरेक्ट लैटिस। सो अगर हमें अपना डिस्क्रिप्शन चेंज कर रहे हैं, हम अपना डिस्क्रिप्शन कहाँ से किधर लेके जा रहे हैं, हम डायरेक्ट लैटिस से रेसिप्रोकल लैटिस में हमारा डिस्क्रिप्शन चल रहा है, मतलब हम सभी चीज़ों को, सभी टाइप्स के इंटरेक्शंस को रेसिप्रोकल लैटिस की नोटेशन में अंडरस्टैंड करेंगे। ओनली रेसिप्रोकल लैटिस इज ओनली अ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, नथिंग टू डू विद द इंटरेक्शंस। एक्सरेज किसी क्रिस्टल से कैसे इंटरेक्ट हो रही है, वी हैव सीन ब्रैग्स लॉ। तो ब्रैग्स लॉ में हमने देख लिया कि कैसे कोई इंसिडेंट एक्सरे किसी क्रिस्टल लैटिस के साथ इंटरेक्ट करती है, कैसा डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, क्यों मिलता है, वी हैव सीन। तो वी विल सी ऑल दिस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। क्यों? क्योंकि जब पीपी वोल्ट ने इस वेरी फर्स्ट इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, तो ये ऑब्वियस है कि लोग क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे कि आपने अगर इस कंसेप्ट को उसके एनालॉगस बता रहे हो डायरेक्ट लैटिस के, तो जो जो बातें डायरेक्ट लैटिस के केस में थी वो बातें आप रेसिप्रोकल लैटिसेस के केस में विद एविडेंस सिद्ध करो। अगर आप सेटिस्फाई हो गए उसको करने में, देन वी विल एक्सेप्ट योर कंसेप्ट, वी विल एक्सेप्ट योर थ्योरी, अदरवाइज this theory will be discarded. Similar situation faced by PP Wold। तो इनसे भी यही क्वेश्चन पूछा गया कि भाई इंटरेक्शन हमने डायरेक्ट लैटिस में देख लिया, डायरेक्ट लैटिस हाउ एक्सरे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे इंटरेक्ट विद अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो रेसिप्रोकल लैटिसेस के केस में हाउ यू विल इंटरप्रेट, हाउ यू विल पोर्ट्रेट। तो उस कंडीशन को समझने के लिए कि कैसे हम रेसिप्रोकल लैटिसेस में इस इंटरेक्शन को समझे कि कैसे वेव्स है वो लैटिस के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, तो वो इस टॉपिक के अंडर हम समझेंगे कि कंडीशन, क्या कंडीशन है डिफ्रैक्शन अकर होने की रेसिप्रोकल लैटिसेस में। अगर मैं पूछूं कि डिफ्रैक्शन अकर होने की क्या कंडीशन है डायरेक्ट लैटिस में, व्हाट यू विल से, क्या कंडीशन है डायरेक्ट लैटिस में डिफ्रैक्शन कंडीशन अकर, डिफ्रैक्शन होने की क्या कंडीशन। सो इमीडिएटली से ब्रैग्स लॉ, 2d sin theta is equals to n lambda, you are familiar with it, 2d HKL sin theta is equals to n lambda. This is the condition for diffraction in case of direct lattice. Now analogous to this we will see the condition for diffraction in case of reciprocal lattices. So what we were discussing about, yes, Bragg's law in case of direct lattice. So we will understand this Bragg's law in case of reciprocal lattices. If we have our description in case of reciprocal lattices, and how you will depict this information in reciprocal lattices. It's just like that you have a piece
there is a piece of information and the Hindu will portray that information in its own way and the Tribune will portray this piece of information in its own way. तो जो piece of information है, जो भी घटना है, जो भी इवेंट है, वो तो वही है, बस उनकी डिस्क्रिप्शन चेंज है. द हिंदू उसको कुछ किसी तरीके से लिख रहा है, द ट्रिब्यून उसको किसी तरीके से लिख रहा है. तो जस्ट लाइक दैट कि जो इंटरेक्शन है किसी भी वेव का क्रिस्टल के साथ, वो इंटरेक्शन इज सेम. दैट इंटरेक्शन इज नॉट गोइंग टू अल्टर विद अल्टरिंग इन द डिस्क्रिप्शन. अगर हम डायरेक्ट लैटिस में स्टडी कर रहे हैं, एक्सरेज वैसे इंटरेक्ट करने वाली है. रेसिप्रोकल लैटिस में स्टडी कर रहे हैं, एक्सरेज का कुछ इंटरेक्शन चेंज नहीं होने वाला है, जैसा पहले था. In that similar manner, what has changed is just the description. पहले हम अपनी नोटेशन डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट लैटिस में थे. Here we have in terms of reciprocal lattice. Just like that. वो इंटरेक्शन अल्टर नहीं होने वाला है, बस उसकी डिस्क्रिप्शन, उसको डिनोट करना, हमें कैसे उसको इंटरप्रिटेट करें, ये चेंज होने वाला. और ये कैसे चेंज होगा, क्या कंडीशन निकल के आएगी, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर दिस टॉपिक, कंडीशन for diffraction in case of reciprocal lattice, or alternate name you are now easily say. We are going to study Bragg's law in case of reciprocal lattices. So let us begin. Bragg's law. So start with the Bragg's condition for diffraction in case of reciprocal lattices. So let us begin with the direct lattice. Let us take 2 points, 2 crystal lattice points in case of direct lattice. Let we have 2 lattice points in case of direct lattice, and let us join these 2 points. Let's say this point is O and this point is A. Here is the point, and this vector OA, this vector OA, as we have taken these 2 points in case of direct lattice, so obviously this vector OA will be translation vector. Translation vector, you are familiar with it, translation vector. I will represent simply it by T. ये कैसे होता था, N1 A, N2 B and N3 C. जहाँ पे ए बी सी क्या है, ए बी सी हमारे डायरेक्ट लैटिस के प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं. प्रिमिटिव वेक्टर्स इन केस ऑफ डायरेक्ट लैटिस, डायरेक्ट लैटिस के केस में. ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू सी, द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस, द इंटरेक्शन ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स with this direct lattice, and we will portray this in terms of reciprocal lattice. We are going to find the condition for diffraction in case of reciprocal lattices, and we have taken here the points, the lattice points of direct lattice. So let's say we have a incident wave vector. Let's say we have quite straight. Let's say we have an incident wave vector in this direction, and first wave, this is the first wave. Let's say this is the first wave incident from this direction and get diffracted in this direction. Let us took another wave, second wave, parallel to the first wave, second wave parallel to the first wave, incident on the second lattice point, and then it will get diffracted. So diffracted get here, lattice points are the particular addresses for the atoms. So यहाँ पे एटम है हमारे, तो एटम इनको क्या कर रहा है, डिफ्रैक्ट कर रहा है. मैकेनिज्म क्या है, कैसे डिफ्रैक्ट कर रहा है, वी हैव ऑलरेडी सीन, वी आर नॉट गोइंग टू मेंशन हियर. तो इसके बाद क्या हो रहा है कि 2 रेज, पहली रेज एंड सेकंड रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, डिफ्रैक्ट हो रही है. क्या निकालेंगे, कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन. कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन निकालने के लिए ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स लॉ में कैसे कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन निकाली थी, 2 रेज सिंपली ली थी, किसी क्रिस्टल पे फॉल हो रही थी, डिफ्रैक्ट हो रही थी, क्या लिया था, उसके बाद हमने उसको उन दोनों वेव्स के पाथ में क्या डिफरेंस आ रहा है,
पाथ डिफरेंस पे कंडीशन इंपोज की थी, अगर पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है देन कंस्ट्रक्टिव, नहीं है देन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो सिमिलर मैनर, सिमिलर पैटर्न वी आर गोइंग टू फॉलो हियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहली वेव सेकंड वेव। अब हम इन दोनों वेव्स के बीच में क्या निकालने जा रहे हैं, पाथ डिफरेंस। क्या पाथ डिफरेंस आ रहा है, तो पाथ डिफरेंस लेने से पहले लेट अस टेक कि जो ये इंसिडेंट वेव है इसका इंसिडेंट वेव वेक्टर है, यूनिट वेक्टर एस नॉट है, और जो डिफ्रैक्टेड वेव है उसका एस है, डिफ्रैक्टेड वेव के डिफ्रैक्टेड रे के का यूनिट वेक्टर, ठीक है। एस नॉट क्या है, जहां पर एस नॉट है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है एस नॉट। जस्ट एस, व्हाट इज एस, एस यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्रैक्टेड रे, डिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एस। नाउ व्हाट वी विल सी, पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स। तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा, सिमिलरली इधर भी एस नॉट है, इसका यूनिट वेक्टर एंड इसका भी इंसिडेंट एंड डिफ्रैक्टेड का एस है। तो पाथ डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे इन दोनों वेव्स के बीच में, यहां से परपेंडिकुलर, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर, लेट्स से दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो पाथ डिफरेंस, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड वेव, पहली और दूसरी वेव के बीच में पाथ डिफरेंस क्या है, दिस मच बी ए, और यू कैन से वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस हेडिंग इन दिस डायरेक्शन, सो यू कैन से सी ए प्लस ए बी। So it will more appropriate to write CA plus AB. This is the path difference. CA plus AB is path difference. So next difficulty is how you will find this BA plus AC. तो BA plus AC को find out करने के लिए हम simply क्या कर रहे हैं, हमने simply क्या किया कि जो ये S वेव वेक्टर है इसकी डिफ्रैक्टेड डायरेक्शन में हमने जस्ट क्या कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा बैक में इस वेव को अगर एक्सटेंड करें तो जो ये एस वेक्टर है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हम इसको नेगेटिव में ले रहे हैं ओरिजिन से, तो ये किस डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन होगी, माइनस एस डायरेक्शन। क्लियर। सिमिलरली एस नोट वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस, हियर वी आर एक्सटेंडिंग दिस। So as we are extending this, so this is going to be S naught plus S naught, because here we are extending and here this is the direction and we are going against the direction, तो against जा रहे हैं तो negative, इसी direction में then positive, so S is negative sign and S naught is with positive sign. So what we will do, we just project this BA on this line and project this on this line. So if I will use this, so this much is the path difference here. So I would just impose this on this vector. So now AC is equal to this much length, so let's say this is P. So now you can say that AC is equals to PO, and now this much path difference BA we are going to impose this here, so BA is this much, so this much distance is BA here. So now we will write this by Q. So now P क्या हो, PO plus O क्या हो, PO plus O क्या हो. So now you can say this distance AC is equals to PO. This distance AC is equals to PO plus this distance AB, this is equals to OQ and this is equals to OQ. So now we have imposed this path difference in terms of S
and S naught wave vectors. Now we will find PO and OQ. We are going to find what is this much distance and this much distance. So PO, in case of this triangle POA, in this triangle POA, what is PO? PO is the component of OA along S naught direction. Am I right? The component of OA along S naught direction. And what is OQ? What is OQ? OQ is the component of OA along negative S direction. So what we will write? PO plus OQ. So PO is equals to, PO we can write, PO is S naught, component S naught along OA direction. And OQ, what is OQ? OQ is in negative S direction. So negative S direction, so we can write it minus of S OA, minus of S dot OA. So this path difference is now in terms of vectors S and S naught, where S naught, what is S naught? S naught is a unit vector in the direction of incident wave. And what is S? S is a unit vector in the direction of diffracted ray. So we have now these two vectors. This is the path difference. So what we can write? S naught minus S dot OA. This much is the path difference. For the sake of convenience, we can write minus of S minus S naught dot OA. This is the path difference. So we left with the path difference S minus S naught dot OA. So this much is the path difference. So what is the next step? What we are going to do now? So we will impose a condition for constructive interference on this. So S minus S naught, we will find now phase difference. So what is the phase difference? So phase difference, what will be the phase difference? If this is the path difference, this is the path difference between the two waves, then what will be the phase difference? So next we are going to find the phase difference. Phase difference between these two waves. So phase difference, you all know that phase difference is equals to 2 pi by lambda into path difference. So phase difference क्या आएगा यहाँ से? 2 pi by lambda into path difference is equals to minus of S minus S naught dot OA. So this much is the phase difference. So we can write it minus of 2 pi by lambda S minus S naught dot OA. So this is the phase difference. So now OA, what is OA? We initially had said OA is nothing but translation vector, and this is nothing but translation vector because we have taken this in direct space. This is direct lattice. So here direct lattice, and that now OA is a translation vector in direct space. So this much is the phase difference. Now we will put this value OA की value put करेंगे. So before putting the value of OA, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि S नोट जो हमारे पास ये फेज डिफरेंस आया है, ये फेज डिफरेंस दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन है, दो वेक्टर्स का यू कैन से डिफरेंस है, जहाँ पे पहला वेक्टर है S बाई लैम्डा और दूसरा वेक्टर है S नोट बाई लैम्डा. सो अगर दो वेक्टर्स का डिफरेंस क्या होगा? अगेन यहाँ से इरेज कर देंगे. फाइनल रिजल्ट हमारे पास फेज डिफरेंस आया है ये वाला. तो फेज डिफरेंस हमारे पास ये वाला है. तो फेज डिफरेंस यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो ये फेज डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस कैसा निकल के आया है? फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू, दिस फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 पाई S बाई लैम्डा माइनस ऑफ S नोट बाई लैम्डा
डॉट ओ ए। ये फेज डिफरेंस निकल के आया है। जहां पे देखो अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर जहां पे 1/λ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड s इज द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दिस इज मैग्नीट्यूड 1/λ and s0 is the direction of this vector. S is the vector in diffracted direction and s0 is a vector in case of incident direction. So now this dimension 1/λ has the dimension of 1/λ has the dimension of length inverse, length का रेसिप्रोकल है ये। अब देखो ये वाली क्वांटिटी का हमारे पास मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल है। डायरेक्ट में जहां पे वेवलेंथ लैम्डा थी, रेसिप्रोकल के केस में वेवलेंथ क्या आ रही है, मैग्नीट्यूड 2π/λ, here 2π/λ, डायमेंशन इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इनवर्स। यहाँ पे इस वाली क्वांटिटी के पास वो सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो किसी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के पास होने चाहिए, सारे एट्रीब्यूट्स है। इसका मैग्नीट्यूड इसका इनवर्स है, लेंथ का इनवर्स है, डायरेक्शन है और डिफरेंस है ये दो वेक्टर्स का। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो ये भी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, ये भी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन टू रेसिप्रोकल लैटिसेस विल अगेन अ रेसिप्रोकल लैटिस। तो इन दोनों का डिफरेंस भी एक रेसिप्रोकल लैटिस ही जनरेट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस, तो ये क्या है, ये क्वांटिटी क्या है, एक रेसिप्रोकल लैटिस है, कैसे रेसिप्रोकल वेक्टर है, ठीक है। रेसिप्रोकल लैटिसेस की टर्म में निकाल दिया, हम डायरेक्ट से चले थे, रेसिप्रोकल्स की टर्म्स में हमने निकाल दिया। तो जो ये वाला फैक्टर है, इस फैक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं कि जो s/λ माइनस s0/λ, सो दिस इज अ रेसिप्रोकल वेक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं जनरली, HA स्टार, KB स्टार, LC स्टार वेक्टर्स, जहां पर A स्टार, B स्टार, C स्टार क्या है, फंडामेंटल रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर्स, फंडामेंटल रेसिप्रोकल प्रिमिटिव वेक्टर्स। ट्रांसलेशन वेक्टर तो ये हम जनरली G से लिखते थे, G। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो ये वाली क्वांटिटी हमारे पास, ये एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, इसको इसके इक्वल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। s/λ माइनस s0/λ, दिस इज इक्वल्स टू HA स्टार KB स्टार प्लस LC स्टार। सो नाउ दिस condition, now we imposed the condition on this difference of the vectors s minus s0 is equals to HA star plus KB star plus LC star। तो हम यहाँ इसको इरेज कर देते हैं, आगे चलते हैं क्या कर रहे हैं। तो डेस्टिनेशन तो क्लियर है, बीच में थोड़ा ब्लर्ड तो नहीं हो गया कि कहाँ अप्रोच कर रहे हैं हम, किधर जाना है। टॉपिक क्या है हमारा, कंडीशन निकालने जा रहे हैं डिफ्रैक्शन की रेसिप्रोकल लैटिसेस के केस में। तो उस कंडीशन की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं कि क्या कंडीशन होने वाली है डिफ्रैक्शन की रेसिप्रोकल लैटिसेस के केस में। तो हम रेसिप्रोकल लैटिस पे तो पहुंच चुके हैं, डायरेक्ट से चले थे, रेसिप्रोकल की टर्म्स में हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से क्या आने जा रहा है, यहाँ से एक सेकेंड, तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, ये फेज डिफरेंस आ रहा है। तो ये वाली चीज हमने इसके इक्वल रख दी, तो इसको इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2π HA स्टार प्लस KB स्टार प्लस LC स्टार डॉट OA की जगह पे क्या था, OA क्या है हमारे पास, डायरेक्ट लैटिस में ट्रांसलेशन वेक्टर। तो OA था हमारे पास N1A, N2B वेक्टर, N3C वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा था हमारे पास, ये तो दोनों वेक्टर है HA1
ए स्टार डॉट ए क्या आया था, प्रॉपर्टीज को अगर हम रिकॉल करें तो 2 पाई आ रहा था, तो 2 पाई यहाँ से सारे से 2 पाई आएगा, एच ए वन प्लस के ए टू के बी प्लस एल सी, N1 आएगा, ये जो ये वाली चीजें वेक्टर होगी, ए डॉट ए स्टार तो 2 पाई हो जाएगा, बी डॉट बी स्टार ये भी 2 पाई हो जाएगा, तो एच N1 के N2 एल N3, तो ये क्वांटिटी आई हमारे पास माइनस ऑफ 2 पाई एच N1 के N2 एल N3, क्लियर। तो जहां पे N1 N2 N3 हमारे पास ये वाला क्या था, एक वैलिड ट्रांसलेशन वेक्टर था, तो N1 N2 N3 तो ऑलरेडी हमारे पास इंटीजर है, दीज आर द इंटीजर्स। तो HKL हमें नहीं पता कि क्या है, दे कुड बी इंटीजर्स, दे कुड बी नॉन इंटीजर्स। तो अगर इंटीजर होंगे तो क्या कंडीशन होगी, नॉन इंटीजर होंगे तो क्या कंडीशन होगी। तो अगर HKL इंटीजर वैल्यू है तो क्या होगा कि इनके सम से ये ट्रांसलेशन वेक्टर लगा के रेसिप्रोकल लैटिसेस के केस में अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चलेंगे, ये जो लैटिस पॉइंट्स का एरे होता है, तो अगर हम एक वैलिड HKL इंटीजर्स की वैलिड वैल्यू लेके चलेंगे तो हम एक ट्रांसलेशन वेक्टर लगाएंगे जी ऑपरेट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हम जहाँ पे पहुंचेंगे वो क्या होगा, वो एक वैलिड रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट होगा, ठीक है। और कुछ भी वैल्यू ले ली हमने इसकी आर्बिट्रेरी, तो हम कहीं पर भी आर्बिट्रेरी पहुंच सकते हैं यहाँ पे। नाउ ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नॉट अ वैलिड रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट, यट दिस पॉइंट इज इन रेसिप्रोकल स्पेस, ये रेसिप्रोकल स्पेस में है ये पॉइंट, बट दिस इज नॉट द वैलिड रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट। तो ये वैलिड रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट पे एंड नहीं होगा अगर HKL हमारे पास इंटीजर्स नहीं हुए तो हमें कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन देखनी है। तो ये जो HKL N1 N2 N3 ऑलरेडी इंटीजर्स हैं, तो इनको भी क्या होना पड़ेगा, HKL को भी इंटीजर्स होना पड़ेगा, तो ये माइनस ऑफ 2 पाई इंटू सम इंटीजर आएगा, क्योंकि ये सारे मिला के एक इंटीजर ही आएगा, 2 पाई हमने पहले बाहर ले लिया है। तो जो फेज डिफरेंस आ गया, फेज डिफरेंस ये क्या आ गया, माइनस ऑफ 2 पाई इंटू सम इंटीजर, तो क्या आ गया, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा, और यू कैन से दैट कि डिफ्रैक्शन अकर होगा इस कंडीशन में, क्योंकि पाथ डिफरेंस अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ था तो हमें इंटरफेरेंस मिलेगा, मतलब कि कंडीशन मिलेगी मैक्सिमा की। सिमिलरली अगर फेज डिफरेंस भी इंटीग्रल मल्टीपल होगा 2 पाई का, पाथ डिफरेंस था वेवलेंथ का, फेज डिफरेंस 2 पाई का, तो फेज डिफरेंस अगर 2 पाई का है देन ये कंडीशन किसके लिए, ये कंडीशन है डिफ्रैक्शन के लिए। तो वी हैव अराइव्ड ऑन दिस कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन इन केस ऑफ रेसिप्रोकल लैटिसेस। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि S माइनस एस नोट, तो यहाँ से हम डेफिनेटली लिख सकते हैं कंडीशन। सो इन सारों को करके हम एक अपनी कंडीशन लिख रहे हैं कि क्या कंडीशन है डिफ्रैक्शन की इन केस ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। तो रेसिप्रोकल लैटिस के केस में कंडीशन क्या है, तो कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन in case of reciprocal lattice, तो कंडीशन क्या निकल के आई है, S बाई लैम्डा माइनस एस नॉट बाई लैम्डा दिस इज इक्वल्स टू एच ए स्टार के बी स्टार प्लस एल सी स्टार, वेयर एच के एल शुड बी इंटीजर,
सो दिस इज द कंडीशन। तो ये कंडीशन है हमारी, दिस इज द कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन, दिस इज द कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन इन केस ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिसेस के केस में ये कंडीशन निकल के आई डिफ्रैक्शन। अब देखिए ये वाली चीज क्या थी, ये वेव वेक्टर है, वेव वेक्टर associated with कौन सी वेव है ये, एस वाली कौन सी थी, डिफ्रैक्टेड वेव, एसोसिएटेड विद डिफ्रैक्टेड वेव। ये वाला फैक्टर है, ये कौन सी इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, दिस इज एसोसिएटेड विद इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव। और जो ये वाली फैक्टर है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रखी है, इसने लैटिस के बारे में सारी जानकारी है इस इक्वेशन में। तो हमें क्या देखना था, इंटरेक्शन देखना था, कंडीशन देखनी थी डिफ्रैक्शन की रेसिप्रोकल लैटिसेस के केस, मतलब कि जब भी कोई वेव आएगी कैसे डिफ्रैक्ट होगी, क्या कंडीशन फॉलो करेगी। तो जो ये वाली ये इक्वेशन हमारी ये कंडीशन निकल के आई है डिफ्रैक्शन की। तो जो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाला पार्ट सारी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है वेव के बारे में, इंसिडेंट एंड डिफ्रैक्टेड वेव के बारे में। और जो ये वाला फैक्टर है ये लैटिस के बारे में हमारी सारी इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है। एच के ये एक वैलिड रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होना चाहिए। तो वैलिड मतलब कि इसके ऑपरेशन से हमें किसी लैटिस पॉइंट पे ही जाने चाहिए, इन बिटवीन द स्पेस नहीं जाने चाहिए। सो दिस इज द कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन इन केस ऑफ reciprocal lattice. So next we will see Ewald's construction. What is Ewald's construction? So Ewald's construction is just direct link between this equation. तो ये इक्वेशन यूज होने वाली है हमारी, इस इक्वेशन का सारा यूज होएगा हमारे Ewald's construction में। Ewald's construction, second, Ewald's construction, Ewald's construction। तो Ewald, P.B. Ewald, Paul Peter Ewald। So what Ewald did was कि उसने इस इक्वेशन को लेके एक सर्कल ड्रॉ किया, और यू कैन से 3 डायमेंशन में एक स्फीयर ड्रॉ किया। कैसे कि हमारे पास डिफ्रैक्शन की कंडीशन आ गई कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ही डिफ्रैक्शन अकर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इवोल्ड ने क्या किया, क्योंकि इवोल्ड से ही ओरिजिन था रेसिप्रोकल लैटिस का। इवोल्ड वो फर्स्ट क्रिस्टोग्राफर थे जिन्होंने ये कंसेप्ट लगाया था रेसिप्रोकल लैटिस का, समझा था इसको। तो उन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट किया, इस इक्वेशन को लेके उन्होंने क्या किया कि लेट से कि कोई हमने एक ओरिजिन ले लिया, रेसिप्रोकल लैटिस का कोई ओरिजिन ले लिया, क्लियर। रेसिप्रोकल लैटिस का ओरिजिन, रेसिप्रोकल लैटिस का ओरिजिन। अब इस पे हमें कोई लेट से इस डायरेक्शन में कोई वेव इंसिडेंट हुई, जहाँ पे ये ओरिजिन है उस वेव का मतलब वो वेव इधर से इंसिडेंट हुई है। उसके बाद क्या किया इवोल्ड ने कि ये इंसिडेंट वेव है, क्या मैग्नीट्यूड होगा, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंसिडेंट वेव को, एस नॉट बाई लैम्डा। तो उसने एस नॉट बाई लैम्डा ये इसका वेव का मैग्नीट्यूड एंड वेव वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ली। उसके बाद क्या किया कि इसको ओरिजिन मान के वेव को और इतनी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया, इतनी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करो। इस तरीके से ये सर्कल ड्रॉ किया। तो लेट से कि ये इंसिडेंट वेव वेक्टर है, डिफ्रैक्टेड वेव की डायरेक्शन हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं,
लेट से मैंने ये डायरेक्शन चूज कर ली, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्रैक्टेड वेव। तो ये डिफ्रैक्टेड वेव की डायरेक्शन है। तो ये डिफ्रैक्टेड वेव की अगर डायरेक्शन है देन इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहने वाला है क्योंकि एक सर्कल है और सर्कल की रेडियस है, तो मैग्नीट्यूड तो इसका वही रहेगा 1/λ। जो वेक्टर इसके साथ एसोसिएटेड था वो क्या था, डिफ्रैक्टेड के साथ s, तो ये हमने s/λ लिख दिया। क्लियर है। यहाँ पे रेसिप्रोकल लैटिस का एक पॉइंट है। नाउ इस इक्वेशन से देखिए s/λ माइनस s0/λ, इन दो वेक्टर्स का फाइंड आउट करते हैं। s/λ दिस वेक्टर माइनस s0/λ, तो माइनस s0/λ, तो मैं इस वेक्टर को इन्वर्ट करके ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस हो जाएगा ये। अगर इस वेक्टर को मैं ऐसे, हेड एंड टेल इन दोनों वेक्टर्स की मिल रही है, तो ये इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट हमें पता है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से रिजल्टेंट क्या आएगा, थर्ड वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो ये तीसरा वेक्टर ये क्या होगा, इन दोनों का सम कह लो या सब्ट्रैक्शन कह लो, उसके इक्वल होगा। और ये चीज क्या है, एक वैलिड रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट है। तो जो भी इस वेक्टर की टिप होगी, इस टिप पे क्या मिलेगा आपको, एक वैलिड रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट। सो वैलिड मीन्स बी वेरी क्लियर, वैलिड मीन्स कि हम अगर उस ऑपरेशन को लगाएं, उस वेक्टर को लगाएं, तो हम एक पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट पे ही पहुंचे, ना कि स्पेस में पहुंचे, रेसिप्रोकल स्पेस में ना पहुंच के हम पर्टिकुलर लोकेशन पे ही पहुंचे, रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट पे पहुंचे। तो ये कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन क्या कहती है हमें, कि ये वैलिड रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट होगा। तो मतलब क्या कि इस वेक्टर की टिप हमें क्या देगी, ये एक पॉइंट है, रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट है। क्लियर। सो नेक्स्ट हमने रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स हमने क्या ले रखे हैं फंडामेंटल हमारे पास, ए स्टार, बी स्टार एंड सी स्टार। तो अगर हम इस डायरेक्शन को अपनी एक्स डायरेक्शन कंसीडर करें, इसको वाई करें, तो हमारे पास कुछ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बी सी होंगे इस डायरेक्शन में, रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट होंगे, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ऑब्वियसली यहाँ भी कुछ पॉइंट होंगे। लेट्स से 1 यूनिट इस पॉइंट का एक्सटेंड करने पे, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, इस प्रकार से ये स्फेयर, ये सर्कल, 2 डायमेंशन की बात करें, ये सर्कल इस प्रकार से एक्सटेंड हो रहा है, ये सर्कल है इस प्रकार से रेसिप्रोकल स्पेस में। नाउ ये हमने एक्स डायरेक्शन में, इस वेक्टर को वाई डायरेक्शन में ले लें, तो बी स्टार, नॉट नेसेसरी कि बी स्टार भी इतना ही मैग्नीट्यूड का हो, लेट्स से कुछ ज़्यादा मैग्नीट्यूड का हमने ले लिया, तो यहाँ पे ये इस प्रकार पॉइंट्स का एरे होगा। इस तरह से इक्विडिस्टेंस पॉइंट, तो इन सारे पॉइंट्स को एक्सटेंड करने पे, ठीक इस डायरेक्शन में भी हम इसको इसी प्रकार से एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड करने पे क्या मिलेगा हमें, रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस, रेसिप्रोकल स्पेस हमें मिलेगा। क्लियर है। तो 2 डायमेंशन में हमने ये जो कंस्ट्रक्शन की है, ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है, ये इवॉल्व सर्कल है। अब इसकी क्या खासियत है, क्या जरूरत है इसकी, क्यों ये खामखा एक और कंस्ट्रक्शन लेके आ रहे हैं, क्योंकि जो कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन है, इवॉल्व ने समझाया, इस प्रकार से समझाया कि इस सर्कल पे जो पॉइंट आ रहे हैं, रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट आ रहे हैं, जहां वहां पे क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है। जो भी लैटिस पॉइंट इस सर्कल को टच कर रहा है वो एक वैलिड रेसिप्रोकल, वो वहां पे डिफ्रैक्शन अकर हो रहा है, तो लेट से अगर हमें ये डिफ्रैक्टेड डायरेक्शन ना लेके अगर इस डायरेक्शन में डिफ्रैक्शन देखते तो क्या होता, क्या ये वैलिड रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट है इस डायरेक्शन, नहीं है। तो जो ये वाला वेक्टर आता है, ये यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं मिला, तो मतलब इस डायरेक्शन में डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा,
क्योंकि जो रिजल्टेंट हम देख रहे हैं ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, वैलिड रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट पे नहीं पहुंच रहे, तो इस डायरेक्शन में हमें डिफ्रैक्शन नहीं मिल रहा, डिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा इस डायरेक्शन में, सिर्फ इस डायरेक्शन में डिफ्रैक्शन हो रहा है। क्लियर? तो ये ये था इवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन। अब ये 2 डायमेंशन में, ठीक इसी प्रकार से अगर हम सी वेक्टर और ले तो इसके परपेंडिकुलर इधर भी ऐसे पॉइंट्स का एरे होगा, ठीक इसके बोर्ड के अंदर भी पॉइंट्स होगा। तो हम इस डायमेंशन को लेके इस तरीके से हर डायरेक्शन में 3D में पूरा ऐसे रोटेट हो सकते हैं। तो उन पे जो जो पॉइंट्स होंगे तो हमें 3D में इसको इवॉल्व करने पे क्या मिलेगा, एक प्रकार का स्फेयर। तो वो स्फेयर, उस स्फेयर पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सभी पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग डिफ्रैक्शन अकर होगा। तो उस स्फेयर को, 3 डायमेंशनल स्फेयर को इवॉल्व्ड स्फेयर बोलते हैं, स्फेयर ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो 3D में बनेगा, 3D में जो ये बनेगा तो इसको बोलते हैं स्फेयर ऑफ रिफ्लेक्शन, स्फेयर ऑफ रिफ्लेक्शन और इवॉल्व्ड स्फेयर, इवॉल्व्ड स्फेयर। तो ये कंसेप्ट था इवॉल्व्ड का। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट लग रहा है कि आगे क्या, इसके बाद क्या, इसकी क्या सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस तो बता दी कि भाई डिफ्रैक्शन कंडीशन को रेसिप्रोकल लैटिस में इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इवॉल्व्ड ने इस तरीके से इंटरप्रेट किया, इस तरह से समझाया, सेटिस्फाई किया क्वेरीज को। तो ये इवॉल्व्ड स्फेयर। सो नेक्स्ट हम इवॉल्व्ड स्फेयर हो गया, तो उसके बाद हमारे पास रहता है सिर्फ कंडीशन की जो ब्रैग्स लॉ है उसको, मतलब एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें कि ब्रैग्स लॉ के इक्विवेलेंट ही है, ये ब्रैग्स लॉ ही है एक प्रकार से, बट फिर भी हमें जी वेक्टर के फॉर्म में चाहिए ना। जी वेक्टर की फॉर्म में अगर हम ब्रैग्स लॉ को देखें तो ब्रैग्स लॉ रेसिप्रोकल लैटिस में निकालने जा रहे हैं ब्रैग्स लॉ। सो ब्रैग्स लॉ, यू नो दैट कि रेसिप्रोकल लैटिस में हम क्या करते हैं, के स्पेस में डिनोट करते हैं, के स्पेस। के स्पेस क्यों, के स्पेस क्योंकि क्यों बात करते हैं रेसिप्रोकल लैटिस के केस में, क्योंकि के वेक्टर वेव वेक्टर 2π/λ, मतलब के वेक्टर का डायमेंशन क्या है, लेंथ इनवर्स। लेंथ इनवर्स मतलब कि रेसिप्रोकल डायमेंशन है इसका। रेसिप्रोकल लैटिस की ये डायमेंशन होती है, इसलिए रेसिप्रोकल लैटिस के में ये के वेक्टर के स्पेस भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि मान लो कि हम किसी के वेक्टर पे ट्रांसलेशन, रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर ऑपरेट किया, तो जो नई लोकेशन होगी वो एक अगेन यही लोकेशन होगी। कोई के डैश लोकेशन पे पहुंच गए तो उसकी सराउंडिंग, जैसे रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, एरे ऑफ पॉइंट्स, और यू कैन से दैट कि लैटिस वो एड्रेस है, एटम्स का एड्रेस है। यहाँ पे एटम मिलेंगे, इन बिटवीन आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि आप किसी गली मोहल्ले में चले जाएं, किसी कॉलोनी में, तो सारी बिल्डिंग्स की पर्टिकुलर एड्रेस होता है। आप गली में पहुंच गए, किसी ने बताया, आप गली में पहुंच गए, यू आर नॉट एट दैट पर्टिकुलर एड्रेस। आप उस व्यक्ति से नहीं मिल पाएंगे जिसके घर आपको जाना था। आप उसके स्पेस में है, उसकी कॉलोनी में है, बट उसके घर में नहीं। क्लियर? जस्ट लाइक दैट, दिस इज द कॉलोनी ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस एंड दिस इज द घर, दिस इज द हाउस, दिस इज द एड्रेस फॉर द एटम इन केस ऑफ रेसिप्रोकल स्पेस। सो यहाँ पे एटम्स का एड्रेस है। तो हम जी एक ट्रांसलेशन वेक्टर है, जी लगा के यहाँ से दूसरी लोकेशन पे पहुंच गए के डैश, तो इसकी सराउंडिंग भी बिल्कुल आइडेंटिकल होगी, क्योंकि लैटिस की हम पहले बता चुके। लैटिस मतलब क्या होता है कि एक से दूसरे पॉइंट में आइडेंटिकल सराउंडिंग हो, तो इसका मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है। तो अगर हम इसको स्क्वायर कर दें बोथ साइड्स तो क्या आएगा, के डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ के डॉट जी। तो के डैश और के इनका मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है, तो ये दे आर गोइंग टू कैंसल। तो ये बचेगा जी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ के डॉट जी, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो ये ब्रैग्स लॉ की एक
familiar C, well-known C representation in case of reciprocal lattices. So this is Bragg's law. You can say that Bragg's law representation in case of reciprocal lattices. So this is all about today's lecture. So let us summarize today's lecture. कि आज के लेक्चर में हमने किन टॉपिक्स को कवर किया. तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन इन केस ऑफ रेसिप्रोकल लैटिसेस. तो इसमें हमने क्या देखा कि जैसे हमारे पास कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन थी इन केस ऑफ डायरेक्ट लैटिस, दैट वाज द ब्रैग्स कंडीशन. सिमिलरली हमने उसको इंटरप्रेट किया इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल लैटिसेस. तो वो कंडीशन क्या निकल के आई थी, s बाई लैम्डा माइनस एस नॉट बाई लैम्डा, दैट शुड बी इक्वल टू अ वैलिड रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर. तो अगर वो वैलिड रेसिप्रोकल लैटिस होगा तो ही डिफ्रैक्शन अकर होगा. तो ये कंडीशन निकल के आ गई डिफ्रैक्शन की. उसके बाद इवोल्ट ने इस इक्वेशन को पोर्ट्रेट किया, इस इक्वेशन को ड्रॉ किया. तो जो ड्राइंग उसने की उसमें उसने क्या कंसेप्ट लगाया था कि भाई वो जो स्फेयर उसने ड्रॉ किया है उस इक्वेशन को लेके, उस स्फेयर का नाम था इवोल्ट्स स्फेयर. उसकी क्या खासियत थी कि उस स्फेयर पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन अकर हो रहा है. ठीक है, स्फेयर पे जितने भी पॉइंट आएंगे, जितने भी पॉइंट टच कर रहे हैं रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग डिफ्रैक्शन हो रहा है. सारे डिफ्रैक्टेड पॉइंट्स है, इसको स्फेयर ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते. क्लियर. तो ये इवोल्ट्स कंस्ट्रक्शन थी. आगे इस कंस्ट्रक्शन को आगे प्रोसीड करेंगे. सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ब्रिलियन जोन्स. वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट ब्रिलियन जोन्स एंड द सिग्निफिकेंस व्हाई वी इंट्रोड्यूस ब्रिलियन जोन्स. क्या फर्स्ट ब्रिलियन जोन, सेकंड ब्रिलियन जोन, क्या मतलब क्या खासियत है, क्यों है ये कंसेप्ट, क्यों है ब्रिलियन जोन नाम का एक नया करैक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. एंड अगर हम CSIR के पर्सपेक्टिव से बात करें आज के लेक्चर में, तो CSIR के पर्सपेक्टिव से आज के लेक्चर से न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आते. ठीक है, तो फिर क्यों पढ़ा, PhD करनी है इस टॉपिक पे. हमने किस लिए पढ़ा है कि ये टॉपिक एसेंशियल है ब्रिलियन जोन्स को, क्योंकि ब्रिलियन जोन टॉपिक इंपॉर्टेंट है. उस पर टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन, इलेक्ट्रॉन इन पीरियोडिक पोटेंशियल, वहाँ से इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं. तो अगर इस टॉपिक को स्किप करते तो जो नए कैरेक्टर्स आपके पास आते हैं उन कैरेक्टर्स को आप कोरिलेट नहीं कर पाते इन कैरेक्टर्स से अपने हमारे जो नॉन कैरेक्टर्स है. जैसे कि किसी एपिसोड का अगर एक दो एपिसोड भी किसी ड्रामा सीरियल के मिस किए तो नए कैरेक्टर्स को आप 4-5 लेक्चर तो आपको उन पुराने से कोरिलेट करने में लग जाए. दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड टुडेज टॉपिक. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. In our next lecture, we'll discuss about Brilliant Jones. Till then, stay tuned. Thanks for watching.